हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं MHI 05 पे जो हूँ नोट्स डाल रही हूँ फर्स्ट चैप्टर के, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके, जो कि पहला चैप्टर है इकोनॉमिक हिस्टोग्राफी ऑफ अर्ली इंडिया। आज मैं 2 टॉपिक्स पे नोट्स डाल रही हूँ, फिर 1-2 दिन में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स पे मैं नोट्स डाल दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द लास्ट 40 years have witnessed numerous publication on the economic history of early India on themes ranging from land ownership, revenue system and rural settlement to urbanization, craft, money and trade. Early India is broadly divided into 2 phases, the early historical and the early medieval. While the first extends up to and includes the Gupta period, the second covers the succeeding 6th to 7th century. Between the middle of the 20th century and now, there have been changes in the ways of seeing and explaining the economic history of early India. The modern economy, deriving from the Arthashastra, has been characterized in terms of centralized state control over all sectors of the economy. Similarly, the postmodern century, instead of being identified only with urban growth, networks of trade and money economy, are also beginning to be understood in terms of different stages of state formation and agrarian expansion in regions outside the Ganga Valley. उसके बाद मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर आप बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आइडियाज़ एंड इकोनॉमी। In the middle of the first millennium BCE, references of numerous crops and cereals such as barley, wheat, rice, sesame, mustard, lentil, sugarcane, banana, and mangoes were found in Sanskrit and Pali literature. There was an increasing importance and preoccupation with land and agriculture in the said period. The description of cattle in the Sutani Pata, an early Pali text, as Anan, that is, giver of food, Vanan, giver of beauty, and Sukhan, giver of happiness, demonstrate the importance of cattle in a situation dominated by peasant units of production. The changed economic conditions in the age of the Buddha are reflected in crops, types of land, and agricultural operation. The Arthashastra brings out the importance of rural settlement and agriculture as the basis of the revenue of the state. The relationship between mines and metal, the treasury, and the consolidation and expansion of state power is clearly brought out in the Arthashastra. Post-modern texts provide information about a large number of occupation and workers with implication for craft production, specialization, and trade. Coins in gold, silver, copper, and even lead and putin issued by several dynasties and Gansang during this period bear testimony to the extent and depth of monetization of society. The Gupta and post-Gupta period witness the decline of trade, decay of towns, and paucity of metallic money. The incidental yet vivid description of the two regions and the contrasting economic pursuit are a delight for the historian. तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो। और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दूसरी बात है स्टूडेंट्स कि किसी भी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए हो, सॉल्व असाइनमेंट्स चाहिए हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए हो, या फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो इन सब्जेक्ट्स पे, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आपको उस पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। मैं जानती हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं है,
और नोट्स में ही इंटरेस्ट है, ये भी मैं जानती हूँ। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे ना, चलो मैं आप लोगों से आज एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई नो ज़्यादा व्यूज़ आप लोग नहीं देते हो मुझे, मैं ये भी जानती हूँ। मुश्किल से हर एक वीडियो पे देखूँ तो 6-7 व्यूज़ आएंगे शुरू में, फिर ज़्यादा बढ़ के 15-20 हो जाएंगे, धीरे धीरे करके बहुत ही स्लो व्यूज़ होते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, बिना एक्सप्लेनेशन के आप नोट्स को रट्टा मार के चले जाओगे ना, याद करके जाओगे ना? क्यों जाओगे ना? तो फिर अपनी लैंग्वेज में अगर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? अगर किसी बच्चे को, मैं आज आपको एक ऑफ़र दे रही हूँ, अगर किसी बच्चे को एक्सप्लेनेशन भी नोट्स की चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर यूट्यूब चैनल पे, तो आप मुझे बताओ, ठीक है? कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ जिन बच्चों को इन नोट्स की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, जिन बच्चों को सभी जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ उनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं अगर अगला वीडियो जैसे इस चैप्टर का बनाऊँगी तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स प्रोवाइड कराऊँगी। अगर किसी बच्चों को नोट्स चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ तो फिर आप मुझे बताओ, ठीक है? और नहीं चाहिए तो फिर मत लिख के भेजना, ठीक है? दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए तो भी मुझे लिख के भेजो, हिंदी मीडियम में भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। अब मैं जानती हूँ कई लोग ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारे चैनल्स हैं, ज्वाइन आप कर सकते हो आराम से, पर मैंने अपना चैनल क्यों खोला था? मैंने इसलिए खोला था ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मैं कोई आपको गाइड बुक से, कहीं से गाइड बुक वगैरह से, हाँ कभी मैं मानूंगी, मैं कभी कभी हेल्प लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये नोट्स जो है मेरे खुद की लैंग्वेज में होते हैं। मैं कभी किसी गाइड बुक को पूरा छाप के आपको दे दूँ, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं मेरे लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं लैंग्वेज को चेंज करके अपने हिसाब से, बुकिश लैंग्वेज को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को समझ में आए, उस तरीके से मैं नोट्स बनाती हूँ, ठीक है? तो फिर आप लोग मुझे बताओ कि कितने बच्चों को इन नोट्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए? ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी है, मत लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस के भी रेट आज बता देती हूँ। इट इज़ लाइक 1200 फॉर द होल ईयर, ठीक है? अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो मुझे बता सकता है, 1200 रुपये है पूरे साल का, क्योंकि आपकी हर एक क्लास क्योंकि आपकी हर एक जो है ईयर, जो आपका साल है, 2 साल का होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 1 साल के हिसाब से 1200 है पर ईयर, ठीक है? चाहे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लो, चाहे आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लो, चाहे आप हिस्ट्री का एडमिशन लो, चाहे आप अपना जो पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन लीजिए, चाहे आप बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए एडमिशन लीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम में एडमिशन लीजिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लीजिए, इट इज़ 1200 फॉर द होल ईयर, ठीक है? और अगर किसी भी बच्चों को ये भी बहुत महंगा लग रहा है या नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन चाहिए नोट्स की, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के भेजें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से एक्सप्लेनेशन भी दूँ। और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है? बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं नोट्स आगे आपको हर एक सब्जेक्ट्स के दूंगी, अब MHI 06 के भी दूंगी, 7 के भी दूंगी, 8-9 के भी दूंगी, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के भी मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप लोग मिस मत करना। बस यही मैं आपको कहूँगी, ये नोट्स आप लोगों के बहुत काम आएंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई बच्चा बुक भी नहीं ले पाता है, ई बुक्स भी आती हैं, नॉर्मल बुक्स भी आती हैं, पर अपनी अपनी कंडीशंस होती है, हम ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो इन नोट्स को भी अगर आप पढ़ के जाओगे या अपने हिसाब से आंसर्स लिखोगे ना, तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं ज़्यादा पैराग्राफ में नहीं लिखती, ठीक है ना? मैं सोचती हूँ पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे आप इजीली समझ भी सकते हो और अपनी बात अपनी टीचर को समझा भी सकते हो, ठीक है? तो फिर से मैं कहूँगी, किसी को ऑनलाइन क्लास चाहिए पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में या बैचलर ऑफ एजुकेशन में, वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।